So this lecture is about the characteristics of simple crystal structures. We have simple cubic structure, body-centered cubic structure, face-centered cubic structure, and hexagonal structures. The rest of the two here shown, diamond and sodium chloride structure, are just the the one selected from here. I mean, just like this sodium chloride structure, which is just a face-centered structure. Okay, let's first talk about the simple cubic structure. Simple cubic structure is shown here. We have 8 lattice point, each one at the corner of this cube, जैसे यहाँ पे शो करवाया गया. Okay, here is the one lattice point whose center is connected to the next one, and here also. So इस तरह से connect करने के बाद we will get this simple cubic structure whose 8 corners are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. At each corner we have one lattice point which contributes to each nearest neighbor, and the nearest cubes are 8 on each of this actually 8 cubes are there at each lattice point near to that one. जैसा कि अगर हम इसकी बात करते हैं, एक क्यूब यहाँ होगा, दूसरा क्यूब इस तरफ, तीसरा क्यूब यहाँ कहीं, चौथा क्यूब इस तरह यहाँ पे, 4 वहाँ है और 4 इसके फ्रंट साइड पे होंगे. So we have 8 cubes which shares this one single point. So अगर 8 शेयर करते हैं तो 1/8 part of this sphere is contributed to each one cube. So 1/8 part of the atom is shared by one cube. That's what written here. और अगर हमें टोटल नंबर ऑफ lattice points इस एक क्यूब में मालूम करने हों, तो क्योंकि हर एक कॉर्नर पे 1/8 है, जब सबको हम सम करेंगे तो we will get one lattice point. Let's first see कि इसके nearest neighbors कितने हैं. First nearest neighbor कितने हैं, second nearest neighbor कितने हैं. The distance from one lattice point to the other lattice point is A along our x-axis, y-axis और z-axis, जिसकी डायरेक्शन में भी हम देखते हैं तो उस केस में distance सेम रहता है because we are just talking about the cubic structure. So let's say हम assume कर लें कि ये हमारा origin है और इस origin से इस तरफ x-axis है, ऊपर y एक्सिस है और इसके इनवर्ड डायरेक्शन में z एक्सिस है. इस तरफ अगर मूव करते हैं x एक्सिस के अलोंग तो वी विल हैव वन एटम एट अ डिस्टेंस a या वन लैटिस पॉइंट एट अ पॉजिटिव डिस्टेंस a along x axis, and similarly a distance minus a along y along a negative x-axis we will also have one atom. So दो आपके पास lattice point इसके nearest neighbors हैं, इस एक के एक positive axis की तरफ, एक negative axis की तरफ, एक axis को correspond करते हैं. इसी तरह y axis को अगर देखें तो एक ऊपर और एक इस तरह negative direction में. Similarly z axis को देखते हैं तो एक उस तरफ और एक इसके इस तरफ. So how many total nearest neighbors are there? First nearest neighbors 6, 2 along each axis. The coordinates of these nearest neighbors are
a 0 0 along positive x-axis minus a 0 0 along negative x-axis. These two. Similarly, जब हम y-axis की बात करते हैं तो y-axis के along zero a 0 and negative के along 0 minus a 0 डिस्टेंस पे एटम लाई करता होगा. और z एक्सिस के केस में ऑफ कोर्स थर्ड कंपोनेंट पॉजिटिव a और नेगेटिव a होगा. द रेस्ट ऑफ द टू कंपोनेंट्स विल बी 0. बट अबाउट सेकंड नियरेस्ट नेबर, और ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर जो है वो a डिस्टेंस पे लाई करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का जैसे डिस्टेंस a था. व्हाट अबाउट सेकंड नियरेस्ट नेबर्स? हाउ मेनी सेकंड नियरेस्ट नेबर्स आर देयर? अब अगर हम यहाँ तक पहले ये देख चुके थे कि a डिस्टेंस पे पहले एग्जिस्ट करता था, फर्दर मैं मूव करता हूँ तो इसके बाद जो एटम आता है वो 2a डिस्टेंस पे आएगा. इस तरह मैं सिर्फ इसी y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता हूँ या z एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता हूँ तो 2a पे आएगा. मगर आप इस a से अगर y एक्सिस के पहले x एक्सिस के अलॉन्ग a डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, फिर y एक्सिस के अलॉन्ग a डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, देन अल्टीमेटली अगेन वी हैव one lattice point at this edge, right? What's the distance between our considered origin and this lattice point? a डिस्टेंस यहाँ पे है, a डिस्टेंस इसी तरह इधर है. हमें कैलकुलेट करना है ये डिस्टेंस इन दो के दरमियान. तो इन दो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर whole square root is the distance between these two things, these two neighbors. अब वो अगर आप देखें तो a square plus a square is 2a square. 2a square का अगर square root लिया जाए तो that ultimately becomes 2 square root of a. 2 square root of a पे हमारे पास एक एटम यहाँ पे मौजूद है. इसी तरह 2 square root of a पे एक एटम यहाँ पे लैटिस पॉइंट मौजूद होगा. 2 स्क्वायर रूट ऑफ a डिस्टेंस पे एक यहाँ पे मौजूद होगा और एक इसी तरह यहाँ पे मौजूद होगा. अब ये प्लेन सिर्फ और सिर्फ हमने जो एनालाइज की है ये x एक्सिस की और y एक्सिस की प्लेन थी. x एक्सिस और y एक्सिस में सिर्फ एनालाइज किया है तो x y प्लेन में 4 एटम निकल आए. एक यहाँ का एटम, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये. सो 4 nearest neighbor in a one plane, 4 second nearest neighbors are there in one plane which is x y. Similarly, if we talk about x and z plane, यानी ये x एक्सिस और इसी तरह इसके अलॉन्ग जो इधर प्लेन जा रही है वो z प्लेन, तो उस केस में यहाँ पे एक एटम मौजूद होगा, एक उस तरफ एटम होगा, एक इधर है और एक यहाँ पे मौजूद होगा. तो मतलब 4 उस प्लेन में भी एटम हैं जो इसके सेकंड नियरेस्ट नेबर हैं. थर्ड प्लेन बच जाती है हमारी y और z प्लेन. y और z प्लेन में भी इसी तरह से 4 एटम मौजूद होंगे जो सेकंड नियरेस्ट नेबर हैं एट अ डिस्टेंस 2 स्क्वायर रूट a. So how many total second nearest neighbors are there? 12. 4 along each plane. xy प्लेन के अंदर 4, yz प्लेन के अंदर और zx प्लेन के अंदर 4. तो टोटल हमारे पास 12 नियरेस्ट नेबर्स यहाँ सेकंड वे नियरेस्ट नेबर है एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस. हाउ टू फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स? अगर मैं यहाँ इसी तरह कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, सिर्फ मैं पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ, बाकी कॉमनली उसी तरह होंगे.
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जो फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया था? एक्स एक्सेस के अलोंग पॉजिटिव 1 है, वाई एक्सेस के अलोंग पॉजिटिव 1 है, जी एक्सेस के अलोंग 0 है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 एंड 0 आ गए। अब इसकी अगर बात करें जो इधर है, तो वो हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव है, बाकी दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो पहले वाले की तरह से हैं, यानी माइनस एक्स वाई एक्सिस के अलोंग 0 1 और जी एक्सिस के अलोंग 0, तो इसके कंपोनेंट्स ये बन गए। अगर इसकी बात की जाए थर्ड वाले की, तो ये -1 एंड 0 होंगे। फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है और थर्ड कंपोनेंट इसका 0 है। तो ये जो पहला यहाँ शो किया गया है ये चीज़ +-1 एंड 0, it has 4 combinations. One time both are positive, second time positive, negative, negative, positive, and this 0 is common in each of these. So 4 आइटम जो है हर एक कॉम्बिनेशन के साथ हैं। इसी तरह से ये 4 जो y और z प्लेन है उसमें होंगे, ये 4 x और z प्लेन में होंगे। तो टोटल 12 आइटम जिनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि इसका एटॉमिक रेडियस किसी तरीके से निकाला जा सके। एटॉमिक रेडियस, दिस विल बी यूजफुल व्हेन वी विल फाइंड एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। लुक एट दिस क्यूब। इसी क्यूब का सिर्फ जो क्यूब के हिस्से में एटम आ रहे थे उनको शो करवाया गया है। 1/8 part is here, 1/8, 1/8 and 1/8. Similarly, these 4 has 1/8 part of each sphere. Assume that कि उस sphere या lattice point जिसको कह रहे थे कि उसका रेडियस r है। हमें पता है कि इस क्यूब की एक लेंथ जो है वो a के इक्वल है, यहाँ हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, a के इक्वल है। सो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस अपर पॉइंट तक का डिस्टेंस टोटल एक क्यूब की लेंथ है जो कि a है, और वो r प्लस r 2r है। दो स्फीयर है यहाँ जो आपस में एक जगह पे इन कांटेक्ट थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो टोटल 2r है। सो a इज इक्वल टू टोटल 2r, या फिर r निकालना चाहें तो a/2, a इज जस्ट अ लेटिस कांस्टेंट। ओके, इसको इसी तरह से यहाँ भी शो करवाया गया है कि मैं अगर सेंटर के फेस को एनालाइज करूँगी इस वाले को, ये एटम यहाँ पे और यहाँ पे 4 एटम है जो ये शो किए गए हैं और उनके सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करवाया गया है। एक के सेंटर से लेके दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस a था। अब क्योंकि एक जो एटम है उसका रेडियस r है, तो यहाँ पे r प्लस r 2r इज इक्वल टू a। यहाँ से आपके पास अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट आया वो r इज इक्वल टू a/2 आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मतलब कि इस यूनिट सेल में टोटल लैटिस पॉइंट की तादाद या टोटल एटम्स की तादाद कितनी है। उसके लिए एक जनरल सा फार्मूला है, n effective is equal to ni plus nf by 2 plus nc by 8 plus ne by 4, where this ni is number of atoms या lattice point completely enclosed by cube। जैसे बॉडी सेंटर के केस में होता है, बॉडी सेंटर के केस में सेंट्रल जो एटम है वो सारे का सारा सिर्फ उस क्यूब का हिस्सा होता है, लेकिन इस केस में हमारे पास इसके सेंटर में कोई एटम ही नहीं है क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक है, तो ये ni 0 होगा, यानी इस क्यूब के कम्प्लीटली इनक्लोज्ड कोई लैटिस पॉइंट नहीं है। nf ये फेस पे मौजूद एटम्स की तादाद है, और इसको 2 पे इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि हर फेस पे मौजूद एटम
2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाऊं, जैसे ये फेस सेंटर्ड है सॉरी ये फेस सेंटर्ड है, तो इस फेस सेंटर्ड में एक क्यूब यहाँ पे है, दूसरा क्यूब इस तरफ होगी, यानी ये जो फेस सेंटर वाला आइटम है ये आधा इसका हिस्सा है और हाफ कंट्रीब्यूशन इसके साथ वाले की है। इट दैट्स वाई इसको हमने 2 पे डिवाइड किया था। दिस NC is number of lattice point at corner of the cube। कॉर्नर पे अगर देखें तो यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है। सो 8 डिवाइडेड बाई 8, इसको 8 से डिवाइड इसलिए क्या है क्योंकि हर जो कॉर्नर का आइटम है वो साथ वाले 8 क्यूब्स में यूनिफॉर्मली कंट्रीब्यूट करता है। This NE by 4, NE stands for number of atom at the edge of the cube। क्यूब का एज कौन सा है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। इस क्यूब को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो ये शार्प एज आपको नज़र आ रहा है, ये शार्प इसका जो हिस्सा है, इट्स एन एज जहाँ पे आपकी ये प्लेन और ये प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करती है। यानी ये एक लाइन इस तरह की अगर है, ये वाली लाइन हो, ये वाली हो, या जहाँ भी लाइन ड्रॉ की जाए तो ये उसके एजेस हैं। अब यहाँ एजेस पे भी कोई एटम नहीं है, यानी ना तो यहाँ कोई एटम है ना कोई यहाँ एटम है। इस तरह यहाँ पे भी कोई एज पे कोई एटम नहीं है। सोडियम क्लोराइड की जब स्ट्रक्चर आएगी उस केस में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि एज पे जो एटम है तो वो कितने हैं या किस तरह से निकालने हैं आपने। बहरहाल सिंपल क्यूबिक के केस में तो एज पे कोई एटम नहीं है। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या लेटेस्ट पॉइंट इन आर सिंपल क्यूबिक कितने हैं। Ni 0 है क्योंकि इनक्लोज्ड कोई एटम नहीं है, फेस सेंटर्ड भी नहीं है, ये कॉर्नर पे हमारे पास 8 एटम है और एजेस पे भी कोई एटम नहीं है। तो 0 0 8 बाई 8 इनको ऐड करें तो हमारे पास 1 एटम आता है जो कि एक सिंपल क्यूबिक का हिस्सा है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इसका कैलकुलेट करें तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये बताती है कि कितना हिस्सा उस क्यूब का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है। ठीक, ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना है उस क्यूब का। अब इस केस में देखें तो हमारे पास ये जो क्यूब है इसके 8 कॉर्नर वाले 1/8 की कंट्रीब्यूशन, लेकिन स्टिल यहाँ कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं। सो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो इस क्यूब में ऑक्युपाइड स्पेस नहीं है। ऑक्युपाइड स्पेसेस सिर्फ ये हैं जो यहाँ कॉर्नर आइटम जितना हिस्सा ले रहे हैं। हर कॉर्नर आइटम जितना हिस्सा उस क्यूब का ऑक्युपाई करता है वो उसके पैकिंग फ्रैक्शन में आएगा। सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू कैलकुलेट के ये टोटल जो ऑक्युपाइड स्पेस है वो और फिर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, उसकी रेशो से हम देखेंगे कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी टोटल जो एटम्स हैं उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आवर यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ आवर यूनिट सेल, ये यूनिट सेल क्यूबिक है तो इसका वॉल्यूम यहाँ नीचे आ जाएगा। और एटम का जो वॉल्यूम है, एटम क्योंकि स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं तो वो हमेशा 4/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा, मगर साथ उसके एन इफेक्टिव मल्टीप्लाई होगा। ये इसलिए कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उस क्यूब का हिस्सा है। सो सिंपल क्यूबिक में हमें पता है कि एक ही एटम होता है। इस केस में 4/3 पाई आर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट एटम एंड डिवाइडेड बाई ए क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ आर यूनिट सेल। अब यही चीज़ हम पहले निकाल चुके थे कि ए और आर का आपस में एक रिलेशन है, r इज इक्वल टू a/2। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे अगर प्लग करता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट आता है दैट इज़ गिवन बाय π/6, और इसको परसेंटेज में लिखूँ तो 52% स्पेस जो है वो इसकी ऑक्युपाइड है। दैट्स ऑल अबाउट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर।
In next lecture, I'll talk about the body centered. Thank you.